Hello students. In last class we discussed about definition of function and its domain and range. Now I Arun Sharma is going to discuss about types of functions or some standard functions. So some standard functions are these. First is identity function, second is constant function, third polynomial function, fourth rational function, fifth modulus function, sixth greatest integer function, seventh exponential function, eighth logarithmic function, and trigonometrical function. So we will discuss about all these functions one by one in detail. So now very first point is here identity function. Let a function f defined from a to a is said to be identity function if for all x belongs to a, fx equals to x, then domain of fx is set A according to given situation and range of f is also A. In arrow diagram you can see we have set A. Suppose elements in set A are A, B, C, D, and as per definition image of every element of the set is itself, means A has A, B to B, C to C, D to D, and E to E. That's why it is identity function. Identity function is also denoted by IA defined from A to A. So this is identity function. In general, if function is defined from R to R, as f R to R, fx equal to x, then it is given by IR. Its domain is R, range is also R. Now we come to the point, that is graph. Graph of identity function is given like this. This is identity function. Simply you can say this equal to x or simply y equal to x. So in this way we discussed about identity function, its domain, range, and graph of the identity function. Now next function is constant function. Number 2, constant function.
a function f defined as fx equal to k, where k is any real number. This is belongs to, symbol belongs to means k is any element of R, and R is set of real numbers, so k is any real number. For example, if we consider fx equal to 4, then this is constant function. Here instead of k we are taking 4. Now domain of constant function is always set of real numbers, and according to this its range is having single element only 4, and its graph, if we plot its graph, then it is simply a straight line parallel to x axis fx equal to 4 in case of this. So this is called constant function. Here we took k equal to 4. Instead of 4, any other value can be taken. So according to that we will get its range and also its graph. Now third is polynomial function. A function defined as fx equals to a naught plus a1x plus a2x square plus an x raised to power n, where x is a variable, a naught, a1, an are constants, and n is a natural number, is called polynomial function. Its domain is always set of real numbers, but its range is not fixed. It varies or changes as per situation. So for this we will consider some examples to understand in better way. Or in these polynomial functions, if it is linear function, or you can say linear polynomial. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, मीन्स x की पावर 1 है, while a and b are real numbers. Then its domain is R, range is also R, and its graph. To plot its graph, consider a particular example. If fx equals to, we have 2x plus 3, then graph will be like this. This point is 0, 3, when x is 0, y is 3, and this point is minus 3 by 2, 0. So in this way, this is graph of fx equals to 2x plus 3.
for every linear function fx equal to x plus b, domain and range will be same, but its graph will be according to situation. Means maybe this straight line or parallel to this or some other line may be there. So in this way this is linear polynomial, means one of the polynomials. और ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में इसका ग्राफ वगैरह सब पढ़ चुके हैं। एंड ये इसको फंक्शन की फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक फंक्शन, this function, a function in the form of fx equal to ax square plus bx plus c is called quadratic function। ये आपने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ा है, हम इसको फंक्शन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इन ईच केस विल बी आर, बट रेंज विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड वेरियस केसेस ऑफ दिस आर पॉसिबल, but we will consider some particular only. Number 1 example, fx equals to x square. This is also a quadratic function because in quadratic function degree of the x is 2, so this is quadratic function. Now its domain वही, क्योंकि डोमेन तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का आर ही होगा। अगर रेंज की बात करें तो रेंज आप देखिए कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, 0 भी हो सकता है, 0 होगा 0 पे, अन्यथा 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो होगा 0 टू इंफिनिटी। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ आता है इस तरह से, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसका जो डोमेन है, डोमेन आएगा इस एक्स एक्सिस पे, तो x will vary from this to this, means from minus infinity to infinity, and range यहां से स्टार्ट हो रही है इसकी और ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज ऊपर एंडलेस है और नीचे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही एंडलेस है, मीन्स ऑल रियल नंबर्स डोमेन हो गया, और इसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है बट ऊपर एंडलेस है, तो ये इंफिनिटी हो गया। तो इस तरह से इसकी डोमेन और रेंज डिसाइड हो जाएगी, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी क्वाड्रेटिक पे। दूसरा एग्जांपल, पिछले केस में हमने बी और सी दोनों को 0 ले लिया था। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पर हम a को 1 ले रहे हैं इन फंक्शन स्टैंडर्ड, और यू कैन से जनरल फॉर्म इज दिस। इन दिस इफ वी टेक a1 b0 then c2 then it will be quadratic in this form, but mind it, a in quadratic functions a never will 0, b and c may be 0 may not be 0, but a should not be 0। अगर a 0 हो गया तो यह क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा, फिर ये लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है,
ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो आप देखिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो ये हमेशा 2 या 2 से ज्यादा बड़ा होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा 0, 2 और ये इस तरह से घूम जाएगा। मीन्स आप देख रहे हैं कि वो जो पिछला केस था हमारा fx = x², उसका ग्राफ यहाँ 0 से ओरिजिन से जा रहा था और ये 2 यूनिट y एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है। अब हम देखते हैं डोमेन। डोमेन जो इसका होगा वही R होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि x की वैल्यू 2 + इंफिनिटी एंड दिस इज फ्रॉम -इंफिनिटी। तो ये x यहां से यहां तक वेरी करता जाएगा। और रेंज जो होगा इसका, तो आप देखिए रेंज कहां से कहां जा रहा है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 आ रही है और ये 2 से y की वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, टू इंफिनिटी। मीन्स इसकी रेंज हो गई 2 to इंफिनिटी। तो इस तरह से करके इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव में हो तो क्या चेंज आएगा। तो उसका ग्राफ हम दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx = -x²। तो देखिए -x² के मामले में क्या होगा, जो x² का ग्राफ था ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ पलट जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। और अब इसका जो डोमेन है वो तो वही सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन जो रेंज है वो आप देखिए, ये रेंज इधर तो फिक्स है बट ये इधर की वैल्यू 2 -इंफिनिटी जा रही है और इधर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी जा रहा है x। सो x की जो वैल्यू जहां से जहां तक जाती है आपको पता है वो डोमेन होता है, और ये y है, y की वैल्यू जहां से जहां तक जाती है वो इसकी रेंज होती है। और ये -इंफिनिटी से हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ इसकी इंटरवल को लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि -इंफिनिटी कभी भी इंटरवल में शामिल नहीं होगा, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा, और 0 हमेशा शामिल होगा इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा। इन दिस वे इसका ग्राफ बन गया। अब मान लो इसी ग्राफ में हम चेंज करते हैं थोड़ा। अगर हम नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं fx = ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx = 5 - x²। तो देखिए इसका ग्राफ जो हमारे पास आया था नीचे की तरफ खुल रहा था वो 5 यूनिट है, +5 आ रहा है, तो 5 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये पॉइंट आपके पास हो गया 0,5। अब आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो -इंफिनिटी से लेकर 5 तक आ रही है, जबकि x की वैल्यू जो है आप देखिए -इंफिनिटी टू ये x 2 + इंफिनिटी जा रहा है। देखिए इस तरह से इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ R कह दो सिंपली, या इसको भी इंटरवल में लिखो तो ऐसे ओपन इंटरवल लिख देंगे। और रेंज अगर आप लिखें तो रेंज इसकी आएगी -इंफिनिटी, और आपको बताते हैं कि इंफिनिटी कभी भी एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसके इंटरवल हमेशा ओपन होता है। और
हाईएस्ट वैल्यू इसकी आ रही है 5। तो इस तरह से इसके ये ग्राफ्स हो गए। सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस इन डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ नेक्स्ट इज one more function we will take in polynomial functions, that is cubic function. cubic function में क्या होता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं f(x) इक्वल्स टू लेट f(x) इक्वल टू x³। अब जैसे मान लो हमारे पास में एक जनरल पॉलिनोमियल है ax³ bx² cx प्लस d, तो इसमें a0 नहीं होना चाहिए, तब तो ये क्यूबिक फंक्शन होगा। अगर a0 हो गया तो ये क्यूबिक नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 3 नहीं रहेगी तब, और इस केस में ये क्यूबिक फंक्शन नहीं होगा। तो क्यूबिक फंक्शन के लिए x³ का होना जरूरी है, इसलिए a0 नहीं होना चाहिए। तो हमने ये इसका एक एग्जांपल लिया है। देन find its domain and range and plot its graph। तो देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, अच्छा आपको हम बता देते हैं कि ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे तो कुछ वैल्यूज इसमें डाली जाएंगी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखा नहीं। आप यहां देखिए, आप -3 डालते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है -27, इसकी -8 -1 -1/8 -1/27, दिस इज 0, this is 1/27, this is 1/8, this is 1, 8 and 27। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे ये इसका ग्राफ बनाते हैं हम, तो ये 0 है, ये x एक्सिस y एक्सिस है, 0 मीन्स ओरिजिन। अब आप यहां लेते हैं 1, यहां लेते हैं 2, यहां लेते हैं -1, यहां लेते हैं -2। तो अब देखिए कि इसकी जो वैल्यू है, यहां पर सपोज करो हम 4 लेते हैं, देन 2, देन 6, देन 8, और इधर भी ये -4 और ये -8। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे